Hello everyone, this is Vivek Tiwari. In our previous video, we have started with the word problem of linear equation in two variables, and we have solved first three questions of 1.5, right? In this video, we will solve next three questions of practice set 1.5. The denominator of a fraction is 4 more than twice of its numerator. So यहाँ पे बात किसका चल रहा है? डिनोमिनेटर का चल रहा है और न्यूमरेटर का चल रहा है, राइट? बट आपको पता है क्या डिनोमिनेटर कितना है, न्यूमरेटर कितना है? नहीं पता है, सो लेट अस अज्यूम द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज y एंड द न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज x. सो मैंने वही लिखा है, लेट न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज x, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज y. ओके फाइन. फ्रैक्शन मतलब क्या? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, राइट? So what is numerator over here? Numerator is x. What is the denominator over here? Denominator is y, right? Yes. So what is the first condition? Denominator fraction is 4 more than twice of numerator. कौन? Denominator. उसने क्या बोला? Denominator fraction is 4 more than twice of numerator. Numerator मतलब x, डिनोमिनेटर मतलब y. तो उसने वही बोला डिनोमिनेटर इज 4 more than twice of numerator, right? Yes. Take this 2 on this side. लेके जाओ, 2 इधर प्लस है, उधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. सो माइनस 2x प्लस y which is equals to 4. Let us assume this is equation number 1. Now what is the second condition? Denominator become 12 times numerator. जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा? 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा. जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन. ओके यस, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन. सो डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर. बट कब होगा? व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6. जब हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 6 से रिड्यूस करेंगे तब 12 टाइम्स होगा. अर्लियर व्हाट इज द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर इज y. What is the numerator? Numerator is x. So when we reduce denominator by 6, numerator by 6, on that time denominator become equals to 12 times of the numerator, right? Yes. So can you simplify it? Multiply कर दो 12 को. 12 into x, 12x. 12 6 अरे बाप रे, that is 72. Yes, I got it. Okay, fine. So what we'll do, take 72 on this side. Okay, so माइनस है तो प्लस हो जाएगा. टेक y on this side. y इधर प्लस है, सो इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. यहाँ पे क्या है? माइनस 6 है. 72 इधर लाओ, माइनस है तो प्लस हो जाएगा. इधर क्या है? 12x है. टेक y on this side. y प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. So 72 minus 6 is how much? I think so 66, which is equals to 12x minus y. This is equation number 2. What can you see in equation 1 and 2? What is the coefficient of y over here? 1. What is the coefficient of y over here? 1. Right? So we can simply add equation 1 and 2. Add 1 and 2. Just add it. What is the 1? 2x plus y, which is equals to 4. This is 1. What is the 2? 12x minus y equals to 66. This is equation 2. ऐड कर रहे, ऐड करो. -2 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस, साइन बिगर नंबर का 12 का साइन क्या है? प्लस है, इसलिए प्लस आया. वाई वाई कैंसल. दिस इज 70, राइट? सेंड 10 ऑन दैट साइड. 70 अपॉन 10 इज हाउ मच? 7. सो हियर वी गॉट x एज 7. मीन्स क्या मिल गया? न्यूमरेटर मिल गया, दैट इज 7. कैन यू कैलकुलेट डिनोमिनेटर? हाउ? पुट x इक्वल्स टू 7 in equation 1 or in equation 2. It's your choice. We will put in equation 1, right? Replace x by 7 over here. 7 2s are 14. Okay, take this 14 on that side, so it become plus 14 plus 14 will be 18. So here we got 18. 18 means what? Denominator. Okay, so we got denominator as 18. But what is the question? Find fraction. क्या चाहिए हम लोग को? फ्रैक्शन चाहिए. फ्रैक्शन मतलब क्या चाहिए हम लोग को? x upon y चाहिए. Just replace x as 7, y as 18. So what is the fraction? That is 7
upon 18. So this is clear. Now we will see next question. Okay, that is fifth question of the practice set. What is the question? Two type of boxes A and B are to be placed in a truck. दो टाइप के बस बॉक्सेस है, वो बॉक्सेस का कुछ तो वेट रहेगा. सो लेट अस अज्यूम जो बॉक्स ए है उसका वेट x kg है, बॉक्स बी का वेट y kg है. बिकॉज हमको ए और बी का वेट पता नहीं है. ओके, दैट्स वाई आई हैव अज्यूम्ड द वेट ऑफ द बॉक्स ए इज x kg and the weight of box y is b, the weight of box b is y kg. so a का x assume कर लिया, b का y assume कर लिया हमने, right? yes. so what is given? अगर मैं a और b को ट्रक में लोड करता हूँ, right? so जो ट्रक की कैपेसिटी है, मतलब मैक्सिमम वेट ट्रक में कितना आ सकता है? 10 टन आ सकता है. कितना आ सकता है? 10 टन. Here remember one thing, 1 ton equals to 1000 kg होता है. 1 ton equals to 1000 kg होता है, राइट? सो कितना आ सकता है लोड? 10 टन आ सकता है. 10 टन मतलब कितना केजी आ सकता है? 10,000 kg आ सकता है. कितना केजी आ सकता है? 10,000 kg आ सकता है. मतलब मैं कितने भी बॉक्स ए को प्लेस कर सकता हूँ, कितने भी बॉक्स बी को प्लेस कर सकता हूँ, बट वेट उनका 10,000 kg से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, वरना ट्रक का टायर पंचर हो जाएगा, राइट? यस. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, लेट अस रीड इट. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ ए, 150 of A मतलब X, 100 of B are loaded in a truck. okay, so उसका वेट कितना हो जाता है? 10 टन हो जाता है. 10 टन मतलब कितना हो जाता है? 10,000 kg हो जाता है. आपको टन को कन्वर्ट करना है kg में, बिकॉज यू हैव अज्यूम्ड योर x and y in kg, right? that's why you have to convert टर्न्स इंटू kg. सो उसने क्या बोला? 150 ए का, 100 बी का. जब साथ में लोड करेंगे ट्रक के अंदर तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 10,000 kg हो जाएगा. देन व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन? जो सेकेंड कंडीशन है उसने क्या बोला कि अगर मैं व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ ए का कितना आ गया? 260 आ गया, लोड करता हूँ तो बी के कितने बॉक्सेस आ सकते हैं? 40 आ सकते हैं. कितने आ सकते हैं? 40 आ सकते हैं. अगर मैं ए का 260 ऐड करता हूँ तो स्टिल बस में इतना एम्प्टी स्पेस है, इतना वेट बाकी है कि जो बी वाले बॉक्स है, बी वाले, उसके भी 40 आ सकते हैं. तब जाके ट्रक फुल होगा. ट्रक क्या होगा? फुल होगा. ट्रक फुल होगा मतलब ट्रक में कितना वेट आ जाएगा? 10 टन आ जाएगा. बिकॉज ट्रक की कैपेसिटी कितनी की है? 10 टन की है ना. सो अगर मैं 260 ए का रखूँगा तो 40 बी का और जाएगा. अगर बी को भी लोड कर दूंगा तो बस क्या, ट्रक जो है वो क्या हो जाएगा? पैक हो जाएगा, टोटली लोड हो जाएगा. मतलब टोटल लोड कितना हो जाएगा उसका? 10,000 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा. यस. क्या दिख रहा है? ये सब के सब 10 के डिविजिबल है. यस. सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 10 फर्स्ट ऑफ ऑल. क्या जाएगा? 15 आ जाएगा. इसको भी 10 से डिवाइड करो, 10 आ जाएगा. इसको 10 से डिवाइड करो, 1000 आ जाएगा. अगेन क्या दिख रहा है? 5 की मल्टीपल है, डिवाइड बाय 5. 3x 2y, इसको 5 से डिवाइड किया तो 200 आ जाएगा. लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये भी क्या दिख रहा है? 10 का डिविजिबल है, डिवाइड बाय 10. 26x 4y विच इज इक्वल्स टू 1000. 2 का डिविजिबल है, डिवाइडेड. 13x 2y which is equals to 500. This is equation number 2. मिलेगा इक्वेशन 1 एंड 2. नाउ क्या दिख रहा है? y उनका जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? इनका सेम दिख रहा है यहाँ पे, राइट? यस. किसका? y का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या है? सेम है. ओके, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में. अब मुझे ये बताओ y का साइन क्या है? यहाँ पे y का साइन प्लस है, यहाँ पे y का साइन क्या है? प्लस है. दोनों का साइन भी सेम है. सो हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे
सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज उनका साइन क्या है, सेम है. यस, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. सब्ट्रैक्ट क्यों करें, उनका साइन सेम था. 2 को पहले लिखेंगे बिकॉज 2 का कोएफिशिएंट क्या है, बिगर है. देन राइट 1 which is equals to 200. Subtract it. So 13 minus 3 will be 10. 2 cancel. This is 300. Send that 10 on this side. So cancel. So what is the value of x? 30 kg. मतलब जो बॉक्स ए का वेट है वो कितना है, 30 kg है. राइट, अब बी का निकालते हैं. कैसे? पुट x इक्वल्स टू 30 in which equation? In equation 1, right? So what is 1 over here? 3x plus 2y equals to 200. So write 30 in the place of x. 33 is a 90. Say 90 on that side. How much it is? I think so 110. Right. So here 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, टेक 2 ऑन दैट साइड. सो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो 110 डिवाइड बाई 2 इज हाउ मच, आई थिंक सो 55. यस, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 55 kg. मतलब जो बॉक्स ए था उसका वेट कितना था, 30 kg था. जो बॉक्स बी था उसका वेट जो था वो कितना था, 55 kg था. राइट, नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट. विच प्रैक्टिस सेट? दैट इज 1.5. सो व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन? Out of 900 kilometer distance, Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. तो विशाल ने क्या किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया. टोटल डिस्टेंस कितना था, 1900 किलोमीटर था. और टोटल डिस्टेंस में से कुछ पार्ट उसने बस से ट्रेवल किया, कुछ पार्ट उसने किससे ट्रेवल किया, एरोप्लेन से. सो यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया कि सपोज उसने x किलोमीटर बस के थ्रू ट्रेवल किया, y किलोमीटर उसने एरोप्लेन के थ्रू ट्रेवल कर लिया. सो मैंने वही लिखा, लेट अस assume the distance traveled by the Vishal by bus is x kilometer and by aeroplane is y kilometer. Right? So अगर मैं बस और एरोप्लेन का डिस्टेंस ऐड कर दूंगा तो कितना मिलेगा, टोटल डिस्टेंस मिलेगा. यस, सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एरोप्लेन. बस से जितना गया उतना डिस्टेंस, एरोप्लेन से जितना गया उतना डिस्टेंस. अगर मैं उसको ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, विच इज हाउ मच, 1900 किलोमीटर. यस, व्हाट इज सेकेंड कंडीशन? बस ट्रेवल विद द एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर. सो हियर speed of the bus is given, that is 60 kilometer, and speed of plane is given, that is 700 kilometer. Okay, so it take 5 hours to complete journey. टोटल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम जाता है, 5 आवर्स जाता है. 5 आवर्स मतलब इधर से इधर तक जाने के लिए 5 आवर्स जाता है. मतलब कुछ टाइम जाएगा बस के थ्रू, कुछ टाइम जाएगा किसके थ्रू, प्लेन के थ्रू. अगर मैं बस और प्लेन के टाइम को ऐड कर देता हूँ तो कितना आएगा, 5 आवर्स आएगा. दैट इज टोटल टाइम ऑफ द जर्नी. बिकॉज टोटल जर्नी के लिए 2 टाइम जा रहा है ना, एक टाइम बस में जा रहा है और एक टाइम कहाँ पे जा रहा है, प्लेन में जा रहा है. सो अगर टोटल टाइम निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 5 आवर्स मिलेगा. बट बस का टाइम आपको पता है क्या, नहीं. आपको प्लेन का टाइम पता है क्या, नहीं. तो बस का टाइम निकालना पड़ेगा और प्लेन का टाइम निकालना पड़ेगा. सो हियर वी नो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. राइट, यस. So let us assume t1 is the time of the bus, right? Okay, so what is the distance of the bus? Distance traveled by the bus is x kilometer. And what is the speed of the bus? 60. बस का डिस्टेंस x था, बस का स्पीड क्या था, 60 था. Let us assume t2 is the speed of the plane, time of the plane. t2 is the time of the plane, right? What is the distance traveled by the plane? That is y. What is the speed of the plane?
दैट इज 700 किलोमीटर। सो मैंने टाइम निकाला किसका, बस का और प्लेन का। टाइम कैसे मिला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस का डिस्टेंस कितना है, x है, प्लेन का डिस्टेंस कितना है, y है। बस का स्पीड कितना है 60, प्लेन का कितना है 70, राइट। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन टोटल टाइम इज 5 आवर्स। मतलब बस का टाइम और प्लेन का टाइम अगर ऐड कर देते हैं तो कितना मिलता है, 5 आवर्स मिलता है। कितना मिलता है, 5 आवर्स मिलता है, राइट, यस। कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, बिकॉज फ्रैक्शन है तो इसका इसमें होगा 700x 60y अपॉन दिस इंटू दिस विच इज 60 इंटू 700 विच इज इक्वल्स टू 5, राइट। 700x 60y, इसको इधर लेके आ जाओ, 5 इंटू 60 इंटू 700, यस। सो 700x 60y, ये कितना हो जाएगा, 6 5 30 30 30 21, कितना ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे, 3 ज़ीरो इसका आ जाएगा, 1 ज़ीरो इसका आ जाएगा, राइट। सो कितना ज़ीरो आ गया, 210000, फाइन। क्या दिख रहा है, सबके सब 10 के मल्टीपल है, सो डिवाइडेड बाय 10। सो मैंने ऊपर वाले इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज सबके सब 10 के मल्टीपल थे, तो 1 ज़ीरो कैंसिल हो गया, राइट, यस। सो दिस इज़ 1, लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या दिख रहा है, y का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। सेम है क्या, नहीं है, सेम बनाना पड़ेगा। कैसे, मल्टीप्लाई बाय 6 इन 1 कर दो, 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू वाई 6y, 19 6 114, आई थिंक सो। दिस इज न्यू इक्वेशन, लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 3, राइट, यस। सो क्या दिख रहा है, कोएफिशिएंट सेम हो गया, इधर भी 6 है, उधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, ओके। दोनों का साइन क्या है, सेम सेम है। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2, बिकॉज 3 का जो कोएफिशिएंट है वो स्मॉलर है, 2 का कोएफिशिएंट क्या है, बिगर है, दैट्स वाई। 21,000 6x प्लस 6y इक्वल्स टू 11400, जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, ये कैंसल। 70 माइनस 6 विल बी 64x एंड सब्ट्रैक्ट 0 0, 6 आ जाएगा, 20 माइनस 11 विल बी 96, टेक 64 ऑन दैट साइड, राइट। सो ये डिविजिबल है क्या, यस। किससे डिविजिबल है, 16 16 6 एंड 16 4, राइट। सो 600 डिवाइड बाय 4, 15 4 हाउ मच, 60 होता है, राइट। सो वी गॉट x एज 60, ये डिस्टेंस है, राइट। अज्यूम क्या किया है, किलोमीटर में अज्यूम किया है, सो x विल बी 150 किलोमीटर। x मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस इज 150 किलोमीटर। और क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस। हमको बस का ही चाहिए था, प्लेन का नहीं चाहिए, तो प्लेन की निकालने की जरूरत नहीं है, बस का चाहिए था, बस का मिल गया। कितना मिला, 150 किलोमीटर मिला। So this is all about the word problem of exercise 1.5.